केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों। मंत्री समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कल्याण कर्नाटका के सर्वांगीण विकास के लिए विधान परिषद में आवाज उठाने वाले नेता की जरूरत है। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुरुगेश निरानी ने भाजपा प्रत्याशी से अपील की है कि वे न्याय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह हिस्सा उच्च सदन में संघर्ष, विरोध और सवाल जवाब के जरिए ईमानदारी से चलता है। बुधवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र के शिक्षित मतदाताओं, भाजपा पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर थांगा, डॉक्टर बसवराज पाटिल सेडम, अष्टगी और अमरनाथ पाटिल के लिए प्रचार किया। इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे अमरनाथ ने पाटिल को वोट देने की बात कही। कांग्रेस पार्टी पिछले एक साल से बिना किसी विकास कार्य के सुस्त पड़ी है। यह विडंबना है कि एक वर्ष में कोई शिलान्यास नहीं किया गया। वे हमारे कार्यकाल में किए गए कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु निकट है। सरकार पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है। इससे पहले हमारी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा पर जब संतोष पाटिल द्वारा आत्महत्या का आरोप लगाया गया तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस मामले में वाल्मीकि निगम के अधिकारी चंद्रशेखर ने आत्महत्या कर ली थी और क्योंकि इसमें मंत्री बी नागेंद्र का नाम है, इसीलिए उन्हें नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस्तीफा देने दीजिए। 6 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿತ ರೈಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಡೆತ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಇಂಥವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 7-8 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎರಡೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇದು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋರು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಸಲ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ, 100% ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿರಪರಾಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇವತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್, ಇದು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತಪತ್ರ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರು ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ರಮಾಂಕ 1 ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಆ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತದ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೋಟ್, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು 1 ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕುಲಗೆಡ್ತದೆ. 1 ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ, ಕುಲಗೆಡ್ತದೆ. ONE1 ಕುಲಗೆಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ
ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಕೊಲೆಗೆಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತ ನೀಡಿ आशीर्वाद ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. बीदर शहर के हक कॉलोनी और बदरुद्दीन कॉलोनी में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है. इनके आतंक की चपेट में मासूम बच्चे और बुजुर्ग आ रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हक कॉलोनी और बदरुद्दीन कॉलोनी में इन आवारा कुत्तों ने अब तक 6 बच्चों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया है. निवासियों का कहना है कि नगर सभा इस मामले पर लापरवाही बरत रही है. शहर में जगह जगह कचरा रहने से यह कुत्तों का झुंड जमा हो रहा है और राहगीरों को अपना शिकार बना रहा है. क्षेत्र में लोग परेशान और डरे हुए हैं. वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट द्वारा गठित विशेष अदालत 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर निजी शिकायत पर आदेश पारित करेगी. प्रधानमंत्री मोदी पर राजस्थान में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है. विशेष अदालत के न्यायाधीश KN शिव कुमार ने कहा कि शिकायतकर्ता जियाउर रहमान नोमानी, जिन्होंने बेंगलुरु में मानवाधिकार कार्यकर्ता होने का दावा किया है, की ओर से वकील की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को आदेश पारित किया जाएगा. शिकायतकर्ता की ओर से वकील ने दलील दी कि अदालत को अपराधों का संज्ञान क्यों लेना चाहिए या मामलों को स्थानीय पुलिस को जांच के लिए क्यों भेजना चाहिए. उन्होंने कहा कि मोदी ने यह कहकर देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन जाएंगे और उनका सोना एक विशेष समुदाय को दे दिया जाएगा. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. देखते हैं समाचार. भाजपा ने मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि विकास निगम के अधीक्षक की सोमवार को आत्महत्या के कारणों की उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की मांग की. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि निगम अधीक्षक चंद्रशेखर की आत्महत्या ने कई संदेहों को जन्म दिया है. विजेंद्र ने कहा कि पीड़ित ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि निगम में गहरा भ्रष्टाचार है और इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की पितामह कांग्रेस सरकार को शर्म से सिर झुकाना चाहिए. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को संबंधित मंत्री
संबंधित मंत्री नागेंद्र को बर्खास्त करना चाहिए, अन्यथा भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। सरकार को न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए। विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धि एक बड़ा शून्य है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस सरकार की एकमात्र उपलब्धि है, जबकि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को छात्रों के लिए आदर्श होना चाहिए, लेकिन उनके हेयर स्टाइल से छात्रों और शिक्षकों के बीच गलत छवि बनती है। मैंने सुझाव दिया कि उन्हें अपने बाल छोटे कर लेने चाहिए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अजीब थी। अगर उनके पास बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो भाजपा उनके लिए पैसे जुटाएगी। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के एक अधिकारी की आत्महत्या के एक दिन बाद युवा सशक्तिकरण और जनजातीय कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने कहा है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है। नागेंद्र ने पत्रकारों को बताया कि सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए आरक्षित 187 करोड़ रुपए में से 88 करोड़ रुपए निगम के खाते में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमजी रोड शाखा के दूसरे खाते में निगम के प्रबंध निदेशक मद को सूचित किए बिना स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अब 88 करोड़ रुपए में से 28 करोड़ रुपए वापस स्थानांतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राशि जारी करनी थी तो बोर्ड की बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शेष राशि निगम के खाते में वापस भेज दी जाएगी। नागेंद्र ने कहा कि मामले में किसी की सुरक्षा का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा एक बार जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी तो हम इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विभाग के अधिकारियों ने हमें बताया कि यह घटना उनकी जानकारी के बिना हुई। मंत्री ने कहा कि इस राशि को ट्रांसफर करने में कुछ बैंक अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि निगम के एमडी ने शिकायत की है कि ट्रांसफार्मर की जानकारी उन्हें नहीं थी। उनके हस्ताक्षर के बिना ही यूनियन बैंक के एक खाते में से दूसरी शाखा के 28 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का मैसेज भी नहीं मिला कि राशि निकाली गई या ट्रांसफर की गई, जो कि बैंक आमतौर पर सभी ट्रांजैक्शन के लिए करता है। इससे संदेह पैदा होता है कि विभाग और बैंक के अधिकारी इसमें शामिल थे। एक चौंकाने वाली घटना में एक ठुकराए हुए व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के चेहरे पर तेजाब मिला पानी फेंक दिया, जिससे कथित तौर पर महिला का चेहरा और बाई आंख क्षतिग्रस्त हो गई है। पीड़िता की पहचान 32 वर्षीय लक्ष्मी बडिगेर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी व्यक्ति का नाम 40 वर्षीय मोनेश पट्टर है। पीड़िता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कथित तौर पर जब पीड़िता ने तालुके के गदनकेरी क्रॉस इलाके में स्थित घर का दरवाजा नहीं खोला तो उसे व्यक्ति ने खिड़की से तेजाब फेंक दिया। मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने वाली कलादगी पुलिस के अनुसार लक्ष्मी की 8 वर्षीय बेटी मामूली रूप से घायल होने के बावजूद बच गई। पीड़िता और आरोपी विजयपुर शहर के मुराना केरी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी और पीड़िता दोनों की शादी अलग अलग व्यक्तियों से हुई है, लेकिन कथित तौर पर वे किराए के मकान में साथ रह रहे थे। मोनेश को लक्ष्मी पर शक था, जिसके कारण अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे। ऐसे ही एक झगड़े के बाद 1 सप्ताह पहले मोनेश घर छोड़कर चला गया था और लक्ष्मी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। मंगलवार को जब मोनेश घर लौटा तो लक्ष्मी ने दरवाजा नहीं खोला तो गुस्साए मोनेश ने खिड़की को धक्का देकर खोला और तेजाब फेंक दिया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में अपनी आसन गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ऐसा अनुमान है कि प्रज्वल 31 मई को भारत आए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि प्रज्वल को बैंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उसने 30 मई को म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए वापसी की फ्लाइट टिकट बुक करवा ली है। हासन लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में पुनः चुनाव लड़ रहे हासन के सांसद जैसे ही यह खबर फैली कि कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उन स्पष्ट वीडियो के विशाल भंडार की जांच का आदेश देने का अनुरोध किया, जिसमें कई महिलाओं का कथित तौर पर उनके द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने को दिखाया गया। वे विदेश भाग गए। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मांग की है कि बेंगलुरु के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए जाने चाहिए और मानसून की शुरुआत से पहले शहर में बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आवश्यक कार्य किए जाने चाहिए। फ्रीडम पार्क में भाजपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से कुप्रबंधन में है, जिसने राज्य की राजधानी के विकास की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हर जगह गड्ढे और कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों को देने के लिए कोई पैसा नहीं है। राज्य की राजधानी में एक भी रुपए का काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भारी बारिश के बाद शहर का दौरा किया, लेकिन विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया। अशोक ने आग्रह किया कि बेंगलुरु के निवासी जो सबसे ज्यादा कर देते थे, अब कह रहे हैं हमारा कर हमारा अधिकार है। राज्य के कुल करों में सबसे बड़ा हिस्सा बेंगलुरु से आता है। ब्रांड बेंगलुरु के नाम पर कांग्रेस सरकार शहर को खराब बेंगलुरु और कचरा शहर में बदल रही है। सरकार को 1000 करोड़ रुपए जारी करने चाहिए और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को नाबालिग लड़की को गर्भवती करने के आरोप में मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 13 वर्षीय लड़की, जिसने केवल कक्षा 7 तक पढ़ाई की थी, अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के कथित यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती हो गई और पीड़ित लड़की की शिकायत पर डिब्बुरहल्ली पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा चिकबल्लापुरा जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर वेंकटेश ने 1 साल पहले ऑफिस रूम में उसकी मर्जी के खिलाफ उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ था। जब उसने विरोध किया तो उसने कहा था कि कुछ नहीं होगा और 6 महीने पहले उसने नाबालिग का कथित तौर पर यौन शोषण किया और किसी को भी इसके बारे में न बताने को कहा। बताया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद वह कक्षा 8 में जाने वाली थी। जब पीड़िता की मां ने उसके स्वास्थ्य में बदलाव देखा तो वह उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह गर्भवती है। बाद में पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चिकबल्लापुरा के एसपी नागेश ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया है। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मंगलवार को 2 लोगों को कथित तौर पर जेडीएस नेता द्वारा कई महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के स्पष्ट वीडियो वाले पेनड्राइव प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार नवीन गौड़ा और चेतन नाम के 2 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे हाईकोर्ट आए थे। एसआईटी के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ लिए गए। उन्होंने कथित तौर पर पेनड्राइव वितरित किए थे, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो दिखाए गए थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार।
होगी मंत्री। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।